Good morning everyone. Welcome to my class of economics. I am Akanksha and today I am going to take class of economics chapter an overview of Indian economy of class 10th. Children, as a citizen of India, it is very important to know about the economy of India, isn't it? And you must be knowing when we got independence, when India got freedom on 15th August 1947. And before that, India was under the rule of Britishers for how many centuries? 2 centuries. It's a big time, long time, isn't it? So, it had its impact on Indian economy. Now we are going to discuss in this chapter that how was the economy at the time of independence and after independence. Okay, so in this chapter we will discuss only Indian economy. Indian economy at the time of independence. So, how was it? At the time of independence, there was decline of handicraft industries. Okay, so first point you can note down is decline of handicraft industry. And why? What was the reason? What was the reason behind decline of Indian handicraft industries? See, the main reason was that before the British, when they came to India, what they did was industries were introduced, isn't it? At the time of independence, there were industries, machines, and these machines and industries replaced labor. ठीक है, तो जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वहीं लेबर काफ़ी, जो कि इंडिया में लेबर पॉपुलेशन वाज ऑलवेज देयर एंड इट वाज मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, लेकिन मशीन्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और जूट इंडस्ट्रीज़ की आने की वजह से जो लेबर था इस इंडस्ट्री में दैट डिक्लाइंड. ओके, सो डिक्लाइंड ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड. देन प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप. नाउ कैश क्रॉप क्या मतलब है? जिससे कैश इजीली मिलता है, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप. तो दैट वाज योर कॉटन, jute and your sugar cane. So these crops were mainly grown at the time of, और ये सब क्रॉप्स क्या किए जाते थे? एक्सपोर्ट किए जाते थे. ब्रिटिशर्स ज़्यादातर ये सब चीज़ एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल दे यूज टू एक्सपोर्ट इट. ओके, तो इनका प्रोडक्शन काफ़ी होता था एंड मनी यूज टू, since they were raw material for those countries, we used to export them at a very cheaper rate. और ये एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल ही बात कर रहे हैं. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल हुआ करता था. थर्ड आपका जो था वो था फैमिन्स एंड शॉर्टेज ऑफ फूड. फैमिन्स एंड शॉर्टेज ऑफ फूड. ये इसलिए होता, फैमिन्स एंड शॉर्टेज क्यों हो जाती थी? क्योंकि वी वर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. ठीक है, रेन्स पे डिपेंडेंसी थी एंड देयर वर फ्रीक्वेंट अकरेंस ऑफ फैमिन्स एंड पीपल यूज टू डाई ड्यू टू हंगर. ओके, सो इसके रीजंस हो सकते हैं. फैमिन्स, बैड रेनफॉल वाज देयर. देन ब्रिटिशर्स यूज टू एक्सपोर्ट फूड आइटम्स, फूड ग्रेन्स टू देयर कंट्रीज. Then poor people had not enough money to purchase food grain and Indian farmers were encouraged to produce cash crops on their field. Okay, and this led to the fall of in production of food grains. ठीक है, तो जिससे पैसा जल्दी मिलता था, farmers वही grow करते थे. That is why there were famines and your situation of shortage of food.
Okay, so this was there, and one more thing that was the feature at the time of independence was intermediaries in agriculture. अब ये intermediaries क्या चीज़ होती है? Intermediaries मतलब the person in between. At the time of independence ज़मींदारी system was there, क्योंकि टैक्सेस लेना पड़ते थे फार्मर्स से, एंड हु यूज टू कलेक्ट, ज़मींदार यूज टू कलेक्ट एंड दे यूज टू गिव इट टू गवर्नमेंट. तो ब्रिटिशर्स मेड दिस थिंग, एक ऐसा सेटअप बना लिया कि ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट हो गई. ज़मींदार यूज टू कलेक्ट एंड एक्सप्लॉयट द फार्मर्स. सो ओवरऑल द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज वेरी पुअर. ओके, and temporary settlements and permanent settlement under which land revenue to be collected was permanently fixed. ये भी होता था कि एक fixed revenue देना पड़ता था, fixed taxes देना पड़ते थे. Okay, so these were at the time of independence. Now we will see the changes in the features of Indian economy after independence. Changes. अब हम देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए या नहीं. आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, आप इस चैप्टर को इसी तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करके बना लीजिए, जिससे आपको एक माइंड मैप हो जाएगा एंड इट विल बी वेरी इजी टू लर्न. ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि हमारा अब जो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम था हमारा. अब ये कैपिटा इनकम क्या है? लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम. इसके लिए हमें कैपिटा इनकम समझना पड़ेगा. पर कैपिटा इनकम वो इनकम होती है जो आपकी नेशनल इनकम जो कंट्री कमा रही है, उस नेशनल इनकम को जब हम पॉपुलेशन में डिवाइड कर देते हैं तो जो इनकम पर पर्सन आती है उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम. ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप. पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन. और ये अभी हम लोगों ने जब 2009 एंड 10 में इसको काउंट किया था तो 9 एंड 10 में 2811 पर मंथ हर पर्सन को मिलता है. अगर हमारी इनकम पूरे इंडिया की देख ली जाए और उसे हर पर्सन को इक्वली बांट दिया जाए तो मतलब हर इंसान के हिस्से में, इंडियन पर्सन के हिस्से में कितना आएगा? 2811 पर मंथ. सो दैट इज वेरी लो, isn't it? You can write down in 2009-10 it was 2811 rupees पर मंथ. ठीक है, तो ये जो इनकम थी बहुत लो थी. सेकंड, जो ग्रोथ रेट थी वो भी वेरी लो, स्लो ग्रोथ था. स्लो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम. और हर कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम होती है वह उसका पैरामीटर होता है कि वो कितना प्रोग्रेस्ड है कंट्री. ठीक है, हम आगे के चैप्टर्स में चाइना, यूएस से कंपेयर करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी इंडिया कितनी पीछे है या आगे है, कैसा है पर कैपिटा इनकम बाकी दूसरी कंट्रीज से. ओके, अब स्लो ग्रोथ का क्या मतलब है कि हर साल ये इनकम तो ग्रो होती है लेकिन उसकी रेट क्या है. जैसे 2008 से लेकर 9 एंड 10 में केवल 160 रुपीज़ का ही ग्रोथ हुआ. ठीक है, 160 रुपीज़, दैट इज़ वेरी लो.
तो 160 रुपीज़ से कितना आप सामान खरीद सकते हो। तो जो ग्रोथ रेट है, महंगाई जितनी बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी ग्रोथ कम है। और सबसे बड़ा जो रीज़न इसका है वो है हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। ठीक है, जितने लोग ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी पर कैपिटा कम होती जाएगी हमारी, उतने लोगों में पैसा बढ़ता जाएगा। सो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई इंडियन इकोनॉमी इज़ वेरी स्लो। देन इसके साथ ही जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इंडियन इकोनॉमी और जो फीचर है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी। अब ये कैसे नापी जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी कैसे पता चलता है कि कोई गरीब है या कौन अमीर है। तो एक इसकी पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन कर दी गई कि एक पॉवर्टी लाइन बना देते हैं जो उस इनकम ग्रुप से कम रहेगा, उस वो अंडर द पॉवर्टी लाइन आएगा, और जो उसके ऊपर होगा दैट विल बी above the poverty line. Okay, and you must be surprised to note that 27.5% of total population of India is under poverty line. Okay, तो 27 अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 27 लोग, 27.5 लोग क्या होंगे, पॉवर्टी पुअर हैं. ओके, सो दैट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर इंडिया. लेकिन कुछ फीचर्स इसके अच्छे भी रहे हैं. जो है सबसे पहले यू कैन से पॉजिटिव फीचर्स इज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री which has agricultural farms. Dependence on, though it is good also in some aspect, कि हम लोग अपना प्रोडक्शन सेल्फ सफिशिएंट हो गए. ये चीज़ अच्छी हुई कि आज की डेट में इंडिया ना केवल अपने लिए प्रोड्यूस कर रहा है बल्कि वो एक्सपोर्ट कर रहा है. ओके, सो जो डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर है वो भी इसका मेन फीचर है और इसको आप पॉजिटिव फीचर मान सकते हैं. Last two features are the positive features. Then the sixth one is planning for development. इंडिया में प्लान्स कब शुरू हुए, किसी को पता है? प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट 1950 में पहला प्लान आया था, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. और इसके अंतर्गत What happened? 5 years प्लान बने, पॉलिसीज़ बनी, फिर 5 years प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया एंड फर्स्ट प्लान केम इनटू इफेक्ट ऑन 1951. ओके, फर्स्ट 5 year प्लान स्टार्टेड इन 1951. ये नोट डाउन कर लीजिए, मे बी फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप दे मे आस्क. ओके, सो दिस इज ऑल इन योर चैप्टर. You can note down these positive as well as negative features of Indian economy, and 2 questions that come to your exam is either Indian economy at the time of independence or changes in the features. So there are 6 features and the last 2 are the positive features. I hope this chapter is very clear to all of you. You may note it down. Thank you so much.